एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। 4 रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ कंट्री टू बिकम अ नेशन। पहली पॉलिटिकल यूनिटी, सेकंड इकोनॉमिक यूनिटी, थर्ड सोशल यूनिटी। भाई अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी चीज हमें दी वो है सोशल यूनिटी। आप मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ो, दादू कबीर, नानक, रैदास, ये सारे के सारे लोग हाथ जोड़ रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों से कि भैया कास्ट सिस्टम छोड़ दीजिए। नो वन वाज लिसनिंग, किसी ने सुना नहीं। भाई कबीर मिडवेल पीरियड में क्या कह रहे हैं, जाति ना पूछो साधु की। ही इज अटैकिंग कास्ट सिस्टम। अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया, उसमें जो सबसे बड़ी चीज दी वो है सोशल इक्वालिटी। The upper caste of India felt the pain of being a lower caste because of English. भाई गांधी जी के साथ क्या हुआ साउथ अफ्रीका में? He was thrown out. That humiliation which he faced in South Africa, he enters into the compartment. ट्रेन में जा रहे, वो व्हाइट्स ने पूछा कि अंदर कैसे आ गए? अरे बोले आई एम अ बैरिस्टर, आई हैव गॉट द टिकट। अरे बोले नो, यू गेट डाउन फ्रॉम हियर, this compartment is for upper caste. Gandhi said I am also upper caste. बोले which caste? He said वैश्य। हाँ बोले फिर भी नीचे उतरो, this compartment is for whites. He said I am British. फेंक दे। तो गांधी जी को पेन हुआ। तो 1930 में 31 में जब वो फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल अटेंड करके वापस आते हैं और सेकंड वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट रिवाइव नहीं होता, तो ही स्टार्ट्स हरिजन टूर। 4 चीजें इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री को नेशन बनाने के लिए। पहली चीज पॉलिटिकल यूनिटी, दूसरी इकोनॉमिक, तीसरी सोशल और चौथी फिलोसॉफिकल यूनिटी। Germany got constitution in which year? 1871. Italy got constitution in which year? 1870. India got constitution in which year? 1950. US got constitution in which year? 1787. अब ये जो फॉर्मूला है वो नहीं बदलेगा। आपने माओ को पढ़ा होगा, कैस्ट्रो को पढ़ा होगा, लेनिन को पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? The success of a revolt, revolution and movement depends upon what? वो फॉर्मूला कभी चेंज ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। The success of a revolt, revolution and movement depends upon, हाँ ठीक, और कोई बात? लिंकन को अगर पढ़ा होगा, अमेरिकन सिविल वॉर, क्या अचीवमेंट उस आदमी की। 7 southern states are out of the union. 7 southern states are out of the union. He is the first Republican president of America, 1860. His friend says to him, you will be remembered as a villain in American history. He says, no, you will write my biography. I will be the superstar. The man who was rich in 3 things: dareness, confidence, enthusiasm, and conceptual clarity. And he finally suppresses. He integrates America. तो वो कौन सी 2 चीजें हैं जो किसी रिवोल्ट, रेवोल्यूशन और मूवमेंट के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो बताया इन्होंने, पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब जब तुम कांग्रेस पढ़ोगे, जैसे मैं अभी तिलक साहब के ऊपर आऊंगा, तो जब आप कांग्रेस पढ़ेंगे तो 3 फेस है कांग्रेस के: मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, गांधी। तो 1885 कांग्रेस इज बॉर्न। हु आर द लीडर्स? मॉडरेट्स। व्हाट इज देयर अप्रोच? पेटिशन एंड प्रेयर। व्हाई? बिकॉज दे आर इन्फेंट। एक छोटे से बच्चे को अगर चॉकलेट चाहिए वो रोएगा, आप नहीं रोएंगे। वो कहेगा पापा प्लीज। In 1885, Congress is infant. So there is no inside support, there is no outside support. So what is the approach of Congress? Petition and prayer. But if you see in 1942, Congress is like you, young, mature and grown up Congress.
And then in 1942 Congress says quit India, कि पापा चॉकलेट की फैक्ट्री लगाएंगे. What is the reason for that change in approach? Congress is getting a strong mass support and Congress is getting a strong outside support. ये formula है. The success of a revolt, revolution and movement depends upon two things: a strong outside support and a strong inside support. You see Lenin, 1917, he is getting a strong inside support and a strong outside support. Which country? Germany. Germany, 1917. Germany declares war against US. Germany is already fighting with Britain, France, Russia, and Germany declares war against US. Germany opens a new front. Lenin says, if Bolsheviks will come into power, they will come out of war. हम तुरंत वॉर से बाहर आ जाएंगे. That was very beneficial for whom? Germany. कि if Russia goes out of war, I will be free from one front. I'll take all these forces, I'll deploy on the other front. So Germany gives support to Lenin. With the backing of Germany, Lenin returns back to Russia. इसलिए इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस. नहीं, इतना गंभीर होने की भी कोई जरूरत नहीं है कि अच्छा इसलिए कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, कि मतलब एकदम अच्छा इसलिए कहते हैं. सर एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन उसका बस एक ही मोटिव है. मैंने कहा ना कि मैं सुबह से इन द इवनिंग यस्टरडे व्हेन द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड, तो आई वाज सो मच टेंस्ड. सर मैं कहीं भी बोलने के लिए इतना ईगर नहीं था जितना मैं फर्गूसन में था. पूरी रात मैं एयरपोर्ट पर रहा हूं, पूरी रात. 5 बजे एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कहा कि फ्लाइट्स आर स्टिल कैंसल्ड. अरे मैंने कहा भैया कुछ चश्मा उश्मा लगा उड़ाओ यार, ऐसे थोड़ा होता है. फ्लाइट्स आर स्टिल कैंसल्ड. तो 6:30 पे उन्होंने कहा कि नहीं अब आरबीआर 200 से नीचे आ रहा है. आरबीआर उनका पैरामीटर है विजिबिलिटी का, तो उन्होंने कहा 200 से नीचे आ रहा है तो विल टेक ऑफ द फ्लाइट्स. तो मुझे जान में जाना ही. तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि शेव वगैरह बना लिए. हाँ मैंने एकदम बना लिया और डाई वाई कर लिया, जा रहे हैं, टेंशन नहीं. एजुकेशन का जो काम है ना, जैसे आपके इंस्टीट्यूट में जब एक बार मैं आया, यहाँ पे बड़ी अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे थे, द प्ले अगेंस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. भाई साहब इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था वो ना, मतलब आई सैट देयर फॉर हाफ एन आवर. मैं बैठा था वहाँ, हम थे फैसल साहब थे, 2 लोग बैठ के थे, और क्या परफॉर्म किया आपने. थीम बहुत अच्छी उठाई. पर हम किसी भी चीज को 2 तरीके से देख सकते हैं कि महमूद गजनी ने हमें लूटा. महमूद गजनी बुरा आदमी है. अंग्रेजों ने हमें लूटा, अंग्रेज बुरे हैं. ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया. दिस पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड एज एस्केपिस्ट पर्सपेक्टिव. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव नहीं होता, ये बड़ा वीक पर्सपेक्टिव होता है. द स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव इज कि हम कमजोर थे इसलिए हमें लूटा. तो इंस्टेड ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन महमूद गजनी, you should write a script emphasizing your weakness. India is a golden sparrow. Prosperity cannot survive with weakness. ये again law है. Prosperity cannot survive with weakness. तो एक आदमी है, उसकी वेट है 15 kg, पैरालिटिक है, आंख से कम दिखाई पड़ता है, और 10 करोड़ रुपए का बैग लेके सदाशिव पीठ के चौराहे पे बैठा हुआ है, और हर 5 मिनट में पैसा निकालता है, अंदर करता है, फिर बाहर रखता है. बहुत ज्यादा देर तक नहीं जिएगा. प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस. और एशिया में 2 पैलेस है, एक चाइना एक इंडिया, और दोनों पैलेस के अगल बगल स्लम एरिया है. अब आपका एक मार्बल का मकान है 1000 करोड़ का, और आपके पास रोल्स रॉयस, ऑडी, BMW, पर आपके घर के चारों तरफ स्लम एरिया है.
So the day you will become weak, the people of slum area will jump into your house. This has happened with India. Aryans, Shakas, Kushans, Huns, Turks, Mongols, Mughals, Iranis, Afghanis, and today Atangwadis. Prosperity cannot survive with. अब जब आप स्क्रिप्ट लिखो, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लिखो, क्योंकि आप परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रहे थे, तो आप यूथ पे ध्यान दो, यूथ पे, कि व्हाट इज मिसिंग इन द यूथ? अलाइवनेस ऑफ माइंड इज मिसिंग, क्यूरियोसिटी इज मिसिंग. अब इस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ने, लेकिन नाम है इस कॉलेज का फर्गूसन. भाई मुंबई, लैंड प्लस 1200 रुपीज 1885, जेम्स फर्गूसन. और विदाउट स्टेट सपोर्ट कुछ हम कर ही नहीं सकते थे. और उस आदमी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गवर्नर ऑफ मुंबई, ही वाज अ वेरी गुड सोल्जर. ही वाज इन आर्मी. विच रेजिमेंट? ये नहीं पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए. आपका कॉलेज है सर. द biggest drawback of present generation student is absence of curiosity, and curiosity is the oxygen of mind. तुम सब कुछ किताबों से नहीं पढ़ सकते. हिंदुस्तान में एक दर्शन, आपके यहाँ डिपार्टमेंट होगा फिलॉसफी का, तो वेस्टर्न के जो लोग हैं वो कहते हैं फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ नॉलेज. हम कहते हैं दर्शन जैसे देखा, मतलब देखकर भी सीखना है. आप फर्गूसन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जेएनयू आए हैं, आपको तो मीनार के सामने खड़े हैं, आपको क्यूरियोसिटी ही नहीं है, खड़े हैं आप, खरीदोगे? नहीं नहीं भैया. अरे तो क्यों देख रहे हो कि भैया कुतुब मीनार देखने जाना है, क्यों देखोगे? तो देखेंगे भैया, नहीं तो खरीदोगे. भाई दो ही वजह से आप कोई चीज देखने जाते हैं, या तो आप इंटरेस्टेड हैं उसकी आर्ट में, उसकी कल्चर में, उसकी स्टाइल में. आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कल्चर में. आर्किटेक्चर टेल्स यू टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग, द फिलॉसफी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. तो जब तुम मौर्य पीरियड पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो वहां स्तूपास मिलेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि बुद्धिज्म वाज डोमिनेंट इन दैट पीरियड. फिर तुम जैसे गुप्ता पीरियड में आओगे, स्तूपास विल बी रिप्लेस्ड बाय टेंपल्स. फिर तुम्हें एक मैसेज मिला कि नाउ ब्राह्मणिज्म इज डोमिनेंट. तुम जैसे मेडिवल इंडिया में आओगे, तुमको मॉस्क दिखाई पड़ेगा, दैट मीन्स इस्लाम इज डोमिनेंट. ये पहला मैसेज आर्किटेक्चर. दूसरा मैसेज, किसी का घर बताता है कि उसकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसी है. तो जब तुम कुतुब मीनार देखोगे सैंडस्टोन का, और फिर ताजमहल देखोगे व्हाइट मार्बल का, तो तुम्हें एक दूसरी बात पता चलेगी कि शाहजहां इकोनॉमिक स्टेटस वाज मच हायर देन इल्तुतमिश. क्यूरियोसिटी सर. आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप इतने बड़े कॉलेज के स्टूडेंट, मैंने कहा ना, मैं परेशान था कि यार कैंसिल ना हो जाए यार. मैं पूना आया, मैं फर्गूसन कॉलेज घूमने आया, मैं चारों तरफ घूमा, आपकी कैंटीन में बैठा, मुझे इतना अच्छा लग रहा था. मुझे लग रहा था कि आगरकर साहब जा रहे हैं, तिलक साहब उधर से आ रहे हैं. मेरी याद है थोड़ा सा चीज़ों को विजुअलाइज करने की. A mind without curiosity is a dead mind. आप जो कोचिंग के खिलाफ बोलते हैं ना, कोचिंग वाले शोषण कर रहे हैं, सर आपकी वजह से कर रहे हैं. आपके अंदर क्यूरियोसिटी, आप कुछ जानना ही नहीं चाहते, आप कहते भैया हमको आईएएस बना दो. आपको मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, वहां का लड़का जब मेरी क्लास में बैठता है ना, तो मैं उसको सोचता हूं कि ये परेशान करेगा, क्योंकि फेमस कॉलेज है ना. द कॉलेज इज नोन फॉर इट्स लेगेसी. सब प्रेजेंट टाइम में उस कॉलेज के 15-16 कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं. हर
मैं इतने सारे कॉलेज गया तो मतलब मुझे किसी कॉलेज में कुछ फील नहीं हुआ। ठीक है, अगर नॉलेज गेन करनी है ना तो पहले एक चीज पैदा करो, क्यूरियोसिटी, जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने पूरी तरह खत्म कर दिया। भाई माँ बाप के पास टाइम नहीं है और बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों के पास इतने और अजीब अजीब से क्वेश्चन। पापा हाउ आई वाज बोर्न, मैं पैदा कैसे हुआ था? वो पापा कहते हैं कि बेटा मैं मंदिर के सामने से जा रहा था और भगवान जी निकले और तुम्हें दे दी। कुछ माँ बाप तो डांट देते कि बदतमीज कहीं का, उल्टे सीधे क्वेश्चन करते। तो यहां माँ बाप ने डांट दिया, उधर टीचर ने डांट दिया स्कूल्स में। क्यूरियोसिटी खत्म हो गई कंट्री की। सबसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है ज्यूज, सबसे पावरफुल कम्युनिटी है बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन पॉलिसी। अब डॉक्टर अंबेडकर को एक बात समझ में आई, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज कि नॉलेज नॉट एजुकेशन। डॉक्टर अंबेडकर सेज कि नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस, एनीवन हु कंज्यूम्स इट रोर्स लाइक अ लायन। क्या बात है! एजुकेशन एंड नॉलेज, नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस। उनकी किताबें अगर आपने पढ़ी, दो जरूर पढ़िए, दो किताबें, एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, जबरदस्त किताब, और दूसरा रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन इंडिया। किसी भी थिंकर को अगर पढ़ना है और समझना है तो सबसे इजीएस्ट तरीका है कि उस पीरियड की कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लीजिए। एवरी थिंकर इज द आउटकम ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड। कार्ल मार्क्स, उस आदमी को एक बात समझ में आया कि बॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो राजा। तो उस आदमी ने ये थ्योरी दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जितने भी लोग आए सब ने उस चीज को पकड़ा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। माओ ने पकड़ा, कैस्ट्रो ने, लेनिन, स्टालिन, सब उसी के चारों तरफ घूम रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि सारा खेल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे है। वर्किंग क्लास का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा नहीं है। तो जब वर्किंग क्लास का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा नहीं है तो वर्किंग क्लास इज नाइदर अ पॉलिटिकल पावर नॉर इकोनॉमिक पावर, एंड व्हेनेवर यू आर विदाउट पावर यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। कभी गांव में जाओ बारिश के समय तो पानी के जो सांप होते हैं ना उनमें पॉइजन नहीं होता, उनको बच्चे निकाल के ऐसे नचाते हैं। यू हैव सीन दैट सीन, इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि इफ यू आर विदाउट पावर एंड पॉइजन यू विल ऑल्सो बी रोटेटेड। ये बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो डॉक्टर अंबेडकर का है वो है एजुकेशन पे। आप उनका डिग्रीज देखिए, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में 2 बार, और लॉ में। किसी के खिलाफ कुछ भी निगेटिव नहीं बोलते, कुछ भी। बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया उन्होंने 14 अक्टूबर 1956। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा, बुद्धा इज द ओनली प्रॉफिट इन द वर्ल्ड, ओनली who says, who's agnostic, not atheist, agnostic. When people used to go to him and ask about God, he used to become silent. And Buddha says, Atma Deepo Bhava. Bhai, Usman Ali, Nizam of Hyderabad, he said to Dr. B.R. Ambedkar ki I will give you 2,000 crores. With your followers, you turn towards Islam. उन्होंने कहा मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है फॉलोवरों से। और फॉलोवर, आप मॉडर्न इंडिया में एक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सोचिए, फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदू रिलीजन, यानी रिलीजन में कुछ बहुत जबरदस्त बात होगी है। द बिगेस्ट फॉर्मूला ऑफ हिंदुइज्म इज द्विज, ट्वाइस बॉर्न। हर आदमी 2 जन्म लेता है, एक मां से, जब वो मां से पैदा होता है तो वो शूद्र है। एवरीवन, हर आदमी। हु इज अ शूद्र? द पर्सन हु इज स्लेव ऑफ हिज सेंसेस। आपको मटन की पार्टी मिली, आप 2 किलो खा गए, डायरिया हो गया आपको। डॉक्टर ने कहा कि कम खाते, बोले सर पेट तो भर रहा था, मन नहीं भर रहा था। अरे मन में भरोगे, यू डोंट हैव योर कंट्रोल ऑन योर टंग। रोल्स रॉयस कार जा रही, आपने देखा, आप देखते ही चले गए, पीछे से बस निकल गई आपके ऊपर से, अब देख लिया ना, जाने दो। हर आदमी जो मां से पैदा हुआ है वो शूद्र है। शूद्र मतलब अ पर्सन हु इज स्लेव ऑफ हिज सेंसेस। फिर उसकी जिंदगी में एक दूसरा आदमी आएगा, उसका गुरु, हु विल टीच हिम द मास्टरी ऑफ सेंसेस, नॉट सब्जुगेशन, मास्टरी। और यही चीज डॉक्टर अंबेडकर को सिखाई उनके ब्राह्मण गुरु ने, जिसकी वजह से उन्होंने टाइटल लिया अंबेडकर। You see him, he is not against Brahmins, he is against evils of Brahmanism. अब डॉक्टर अंबेडकर को इतने मल्टीटास्क काम करने थे, फियर दूर करना था लोगों के मन से, इज्जत दिलानी थी लोगों को, एजुकेशन देना था। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कौन सा बनाया? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अंबेडकर। देखो कैसे कोई आदमी, प्रिपरेशन, दुनिया में आपका गोल क्लियर होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ क्लियर गोल, यू विल रोम हियर एंड देयर। उनका गोल क्लियर है कि जो भी सप्रेस्ड सेक्शन है, सप्रेस्ड इंक्लूडिंग अपर कास्ट वुमेन। आपका जो प्रिंसिपल का ऑफिस है ना, वहां ऊपर 5 फोटो लगी हुई और 5 अपने अपने फील्ड के महारथी शिवाजी कि साम्राज्य बनाया कैसे जाता है। जमींदार का बेटा, सन ऑफ अ जमींदार, क्रिएटिंग एम्पायर। शाहू जी महाराज, नो मोनोपोली ऑफ एनी पर्टिकुलर कास्ट इन प्रीस्टली सेक्शन, कोई भी पूजा करा सकता है। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, एंड देन दैट लेडी फूले। और ये 5 लोगों ने जो फिलॉसफी दी है, पहला प्रिपरेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्रियोरिटी एंड प्लानिंग। आपकी लाइफ में अगर प्रियोरिटी नहीं है, पहले क्या करना है? आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आप राजनीति करने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो प्रियोरिटी सेट करना है। इफ यू डोंट सेट योर प्रियोरिटीज, यू विल बी गॉन। 98% दिल्ली में लोग जो मुझे मिलते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रियोरिटीज। 7 महीने कोचिंग हो जाती है, फिर आते हैं, सर बहुत बेचैनी हो रही है, तो पैदल चले जाओ दिल्ली से पूना तक, या तो तुम बचोगे या बेचैनी। तुम्हें बेचैनी इसलिए हो रही है, तुमने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की। अगर इस क्लास में 200 लोग बैठे हुए ना, तो एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटी। अंबेडकर का जो पहला मैसेज है ना, प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग। तो 1924 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। सुना है? और उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एजुकेशन इन डिप्रेस्ड क्लासेस। यही पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर ज्योतिबा फूले कितना बड़ा काम कर रहे हो। ये कास्ट बेस्ड लोग नहीं थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज्यादा परेशान थे, इसलिए उनका नाम लेते थे। बट ज्योतिबा फूले ओपन्स द स्कूल नॉट ओनली फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस बट ऑल्सो फॉर अपर कास्ट वुमेन।
He says that along with the depressed class, they have also suffered. फिर डॉक्टर अंबेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अब देखो कैसे डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे हैं। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया, बोले एजुकेशन को प्रमोट करना है, पढ़ो सब लोग, ध्यान करो। जैसे ये पेट है ना, ह्यूमन बॉडी में दो पेट होते हैं, देयर आर टू बेलीज इन ह्यूमन बॉडी, एक ये पेट है, एक ये पेट, दोनों बेलीज हैं, और ये दोनों अपने चॉइस का खाना खाते हैं। आप में से बहुत लोगों को अगर करेले का जूस दे दिया जाए, आप नाराज हो जाएंगे, आप इसको बेली मानते ही नहीं। आपने एक नॉवेल उठाई 1000 पेज की, एक राउंड में पढ़ गए आप, यू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टर, यू रिमेंबर ऑल द स्टोरी, पर जब हमने आपको एनसीईआरटी दी, आप 2 पेज के बाद सो गए। अगर आपको कल आईएएस बनना है, अपनी इस बेली को अभी से इंप्रूव करिए, इसकी डाइजेशन पावर को बढ़ाइए। आप यहां से दिल्ली जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पूना में ही पढ़ेंगे, और पहले दिन जैसे मान लीजिए आप यहां 2 घंटा डेली बैठ के पढ़ते हैं, तो आपकी कैपेसिटी 2 घंटे की है, और फिर जब आप तैयारी शुरू करेंगे, एंड देन यू विल सिट फॉर 10 आवर्स, अरे सर सब बाउंस हो जाएगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग, फर्स्ट मैसेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी सेक्शन, सेकंड मैसेज। पहले ऑर्गेनाइजेशन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1924, देन ही गोज अब एजुकेशन बनाओगे, इक्वालिटी दिलाओगे, लेकिन कैसे दिलाओगे? ये चीजें कैसे दिलाओगे? कैसे करोगे? फिर क्या किया डॉक्टर अंबेडकर ने? अरे यार, पॉलिटिकल साइंस की बेइज्जती ना कराओ यार, इतने बड़े थिंकर हैं वो। What was the next step of Dr. Ambedkar after this depressed class association? He attends round table conference. He says to the British government कि we want political share, हमको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और रिजर्वेशन चाहिए। तो फिर कम्युनल अवार्ड 1932, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको गांधी जी ने बाद में कहा कि नहीं हम यार बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने पूना पैक्ट, यहीं पे पैक्ट हुआ। कितना परसेंट रिजर्वेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटर? 18, क्योंकि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो अगर आप संसद में बैठेंगे तो अपने लिए कानून बनाएंगे, लेकिन आप संसद में कैसे बैठेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। तो 1942 शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। प्रायोरिटी, एवरी थिंकर, हर थिंकर, एवरी थिंकर, एमजी रानाडे साहब, उनके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? What was the most important development after 1850 which laid down the foundation for the birth of India as a nation? Try करो यार। What was the most important development after 1850 which laid down the foundation for India as a nation? Yes. और मैंने क्या कहा? आप थिंकर को, आप रटने के चक्कर में रहते हो। एवरी थिंकर, एवरी इज आउटकम ऑफ बैकग्राउंड। आप उसकी बैकग्राउंड देखो, तुरंत समझ में आएगा। और सबसे, मैंने आपको कहा, सबसे अच्छा तरीका बैकग्राउंड देखने का, आप उस पीरियड, जैसे एक नॉवेल है द टेल ऑफ 2 सिटीज, अगर आप वो नॉवेल पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि कम्युनिज्म पैदा क्यों हुआ। और अगर आप मदर पढ़ लें, मदर, रशियन नॉवेल है मदर, अगर आप मदर पढ़ लें, भाई साहब, आफ्टर 50th पेज यू विल लीव द बुक। वेरी फेमस रशियन नॉवेल मदर, मैक्सिम गॉर्की।
you'll cry. A lady is giving birth to a child and she is dragged by the feudal lord. That was the pain of serf. पूरी दुनिया में फ्यूडलिज्म का नाम सुना होगा ना. रशिया में एक दूसरी तरह का फ्यूडलिज्म था, बास्टर्ड फ्यूडलिज्म. नाम सुना कभी? लिख लो सर. आफ्टर द क्लास फाइंड आउट व्हाट वाज दिस बास्टर्ड फ्यूडलिज्म. दैट वाज सच अ बिग पेन फॉर द फार्मर्स ऑफ रशिया. उसी पे किताब है मदर. आपको रशियन रेवोल्यूशन एकदम समझ में आएगा. एमजी रानाडे साहब, फिर मैं मुद्दे पे आ रहा हूं. कौन सी चीज जिसने इस देश के जन्म की नींव रखी, उसके पहले तुम्हें फ्रीडम स्ट्रगल नहीं मिलेगा. यस, 1885 में. वो क्यों पैदा हुई? इंटेलेक्चुअल तो बेटा पहले भी थे, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग. Yes, yes. Which was the foundation for the more kind of more intellectuals and all the Indian society. हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा जा रहे हो. मैं ये पूछ, देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाइफ में हमेशा रखो. एक लाइन में पूरी बात बोलो. एक मारवाड़ी लड़की जो है, एक मारवाड़ी लड़के के साथ भाग रही थी. तो मारवाड़ी लड़की ने लड़के से कहा कि शाम को आना, मैं अपने घर के पीछे एक सिक्का फेंकूंगी, जब तुम उसका आवाज सुनना तो तुम मेन गेट पे आ जाना, फिर हम दोनों निकल लेंगे. तो लड़की ने एक कॉइन फेंका 10 रुपए का. फिर वो मेन गेट पे आई, लड़का गायब. उसने लड़के को फोन किया कि कहाँ हो? तो लड़के ने पूछा कि सिक्का किस डायरेक्शन में फेंका था? मैं सिक्का ढूंढ रहा हूं, आई एम सर्चिंग दैट कॉइन. तो लड़की ने कहा, इडियट, आई एम अ मारवाड़ी गर्ल. मैंने सिक्के को एक थ्रेड में बांधा था, फिर फेंका. When it made the sound, I pulled it back. वापस आ जा, सिक्का मेरे पास है. तुम पॉइंट पे रहो, तुम पॉइंट पे रहो. मैंने पूछा कि व्हाट वाज द इवेंट? कांग्रेस क्यों बनी? किसने बनाई कांग्रेस? इंटेलेक्चुअलों ने? नहीं. किसने? डफरिन तो उस वक्त वाइसरॉय था. वाइसरॉय था. हाँ ठीक है, उसका रोल था. बनाई किसने? किसकी बैकिंग है? सर जी, आफ्टर 1850s इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया. इंडियन रेलवेज 1853. Infrastructural revolution led to industrial revolution. 1854 first cotton mill Mumbai. Now infrastructure and industry. अभी जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको स्टेट का सपोर्ट चाहिए. लिट्टन comes to India 1876. He brings down the import duty to the minimum level. Indian markets were flooded with foreign goods. This was an attack on the interest of Indian industrialists. तब उन्होंने भारत के एमजी रानाडे वगैरह लोगों से कहना शुरू किया, यार हमारे इंटरेस्ट के लिए लड़ो यार, हम पैसा दे रहे हैं ना, विल फाइनेंस द मनी. रेवोल्यूशन, मूवमेंट, रिवोल्ट, ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट सर्वाइव विदाउट फाइनेंस. HRA बनी 1924. बनी HRA. Bhagat Singh said, capitalism, imperialism, both are my enemies. When both are your enemies, they will not help you. To run a movement, you require money. पैसा चाहिए. तो 1924 HRA, 1925 काकोरी रॉबरी. रॉबरी ऑफ स्टेट फंड्स. किसके लिए? पैसे के लिए. हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्टों ने फंड किया, फाइनेंस किया. तो एमजी रानाडे ने कहा, तुम देखो कि मॉडर्न इंडिया का 2 पार्ट है. 1757 to 1857. देयर इज नो फ्रीडम स्ट्रगल इन दैट पीरियड.
1857 टू 1947 फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस दुनिया को किसने बदला? मॉडर्न दुनिया किसने बनाया? दो फोर्सेस ने, एक कैपिटलिज्म है, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। ईरान देखो, इराक देखो, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है? नहीं है। फ्रांस देखो, ब्रिटेन देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है? नेशंस है वो, सोशल इक्वालिटी है। अब फ्रांस में तुम जाओगे, लड़की जीन्स पहन के मिलेगी तुम्हें, काम कर रही वो, शी इज वर्किंग, शी हैज टू गो इन अ फैक्ट्री, शी हैज टू गो टू द ऑफिस, बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है। तुम दिल्ली मेट्रो में बैठोगे, वो अनाउंस करेगी कि कृपया अपना दुपट्टा, अपनी साड़ी बचा के रखे। एक लेडी फंस गई। अब तुम सोचो कि लेडी साड़ी पहन ले, बुर्का पहन के फैक्ट्री में चली है, और मान लो घुस गया अंदर मशीन में, गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो एमजी राना डे ने कहा, पूरी थॉट प्रोसेस उनकी उसी पे बेस्ड है, पूरी एक लाइन पे। मैं एक एक लाइन सारे थिंकरों के बारे में बता रहा हूं आपको। पूरी थॉट प्रोसेस एक लाइन पे बेस्ड है। इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ नेशन, देन इंडिया हैज टू गो फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, पॉलिटी चेंज हो जाएगी, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। अब वो कुछ नहीं करना। ये इंडिया में जातिवाद क्यों है? अभी सर्वाइव क्यों कर रहा है? एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सीरिया में देखो, सिया सुन्नी लड़ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है। ओल्ड आइडेंटिटी इज अलाइव। पर अमेरिका में कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, एक नई क्लास पैदा हो गई है। जैक मा इज अ चाइनीज, अंबानी इज अ इंडियन, एंड बिल गेट इज अमेरिकन। एमजी राना डे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, इतना सीरियस होने की बात नहीं है। पर मुझे लगा था कि मतलब हम बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन करेंगे। अगली बार करेंगे, कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर होकर आइए, कोई बात नहीं। आप हमसे एक टॉपिक ले जाइए, वेस्टर्न थिंकर्स, कार्ल मार्क्स, हीगल, बहुत मजा आएगा। होता क्या है ना कि अब अगर एक होता प्रवचन कि मुरारी बाबू बोल रहे हैं और हर आदमी खुश है कि हाँ आत्मा परमात्मा से मिल रही, एक होता है इंटरेक्शन। When you sit with the knowledgeable class, तो you have expectations कि तुम काउंटर करो। तिलक अल्टीमेट आदमी, मतलब अल्टीमेट कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग छोटे हैं। अल्टीमेट इस सेंस में मल्टी डायमेंशनल आदमी है। 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इलिटरेट। कैसे समझाओगे कि स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लेना है? नहीं समझा पाओगे। उनको पता ही नहीं स्वदेशी मूवमेंट क्या है। कहेंगे साहब स्वदेशी ये क्या होता है? पब्लिक को बुलाना है, यू हैव टू इनवाइट द पीपल, मास मूवमेंट करना है, बंगाल पार्टीशन का विरोध करना है। तो तिलक ने क्या किया? कल्चरल प्रोग्राम्स, शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल, तो लोग आते थे भीड़ में। तो तिलक ने कहा आ ही गए तो नारा भी लगा दो यार। जब बाहर ही आ गया तो साम्राज्य मुर्दाबाद लगा दो, लगा दिया लोगों ने। कर्जन वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। कर्जन को पता था कि तुम नहीं ला पाओगे। 1907 सूरत स्प्लिट, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, कांग्रेस बिकेम अ डेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूथ जो है, यूथ। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, यहां पे फर्गूसन में स्टूडेंट यूनियन है? है ना? हु इज द फादर ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड?
हु इज द फादर ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड? कहां से, किसने शुरू किया ये? स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अरे मैं तो बहुत कुछ सोच के आता कि ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। नहीं, अब तैयारी, अब जवाबी मुकाबला होगा अगली बार। आप भी तैयार करके आइए। ये नहीं पता? अरे माजिनी, इटालियन यूनिफिकेशन की कहानी सुनी है? माजिनी, Carbonari, the secret organizations wanted to unite Italian state. They were brutally suppressed. Mazzini says कि public support is important. So he starts Young Italy movement. Inform the students about the goal. They will disperse to the masses. Down filtration theory. उसी पे हेनरी वेवरियन डेरोजियो ने बनाया यंग बंगाल मूवमेंट, उसी पे यंग इटली मूवमेंट, यंग टर्की मूवमेंट, यंग चाइना मूवमेंट. ही इज द फादर, माजिनी. एल्डर्स दे फ्रेम द पॉलिसी, यूथ दे इंप्लीमेंट. और सूरत में क्या हुआ? यूथ बाहर हो गया, बुढ़े अब कुछ कर नहीं सकते थे, कांग्रेस मर गई. 1914 तिलक इज रिलीज्ड फ्रॉम जेल. अब देखो इंसिडेंट, थिंकर देखो, आप भी का थॉट प्रोसेस देखो. ही इज रिलीज फ्रॉम जेल. तिलक वांट्स टू री एंटर इनटू कांग्रेस. फिरोज शाह मेहता वाज अलाइव, द ओल्ड गार्ड. सूरत में जूता उनके मुंह पे पड़ा था. तिलक ने कहा साहब हमें कांग्रेस में आना है. उन्होंने कहा हम नहीं आने देंगे. अब तिलक ने क्या किया? तिलक ने ऐसा कौन सा काम किया कि उन्हें कांग्रेस में एंट्री मिली? समझाना पड़ेगा क्या किया और क्यों किया. और जो पहला बता देगा उसको वाजीराम में फ्री एडमिशन करा देंगे, और इकरा में, दोनों जगह फ्री. लिख के जाएंगे, आपके वाइस प्रिंसिपल को लिख के दे के जाएंगे, आपका नाम और सिग्नेचर. ठीक, क्या हुआ उसमें? क्यों किया होम रूल? क्यों किया? आंसर तुम्हारा सही बेटा, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. एक्सप्लेनेशन दे दो सही. 1.5 लाख रुपए जीत जाओगे. 1.5 दिल्ली में, 80 यहाँ. हाँ 1 मिनट, चलो 20,000 रुपये तो दे ही दिया तुम्हें. अरे नहीं बेटा सुनो, कभी दुनिया में तुमने किडनी पे गाना सुना है? किडनी पे, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, सारे गाने किस पे? हार्ट पे है ना. यूटिलिटी बेटा, यूटिलिटी. इफ किडनी फेल्स यू कैन सर्वाइव ऑन डायलिसिस फॉर 10 years. किसी की भी किडनी फेल हो जाए 10 साल डायलिसिस पे रह लेगा. कोमा में चला जाए जिंदगी भर कोमा में रह लेगा. लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा. अगर हार्ट फेल कर जाए ना, इमीडिएट डेथ. जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत. अब सोचो, कोरिलेट करो. कांग्रेस वाज अ डेड ऑर्गेनाइजेशन 1914. What Congress required? Mass support. What extremists required? Organization. In Home Rule League, he gives the message to the Congress कि I am still a mass mobilizer in India. अब अगर तुमको ये मास चाहिए तो हमको अंदर आने दो. And that led to Lucknow Pact of 1916 because both became useful to each other. मराठा न्यूज़पेपर, केसरी, 7 न्यूज़पेपर, और लाइब्रेरी मूवमेंट. आपने शायद ना सुना हो लाइब्रेरी मूवमेंट.
तिलक इज थैंक यू, बस 5 मिनट और। मेरी एक एनजीओ है द्विज फॉर स्टूडेंट्स, तो उसके तहत मैं प्रोग्राम्स करता हूँ पूरे इंडिया में। तो मैं आपके प्रिंसिपल साहब से बात करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि एनसीईआरटी का एक प्रोग्राम अगर कभी मौका मिले तो हम आपके साथ करें। 12th की एनसीईआरटी, 12th विपिन चंद्रा, आप हमसे 1 महीने का टाइम लो, 1 महीने का, पढ़ो उसे खूब कायदे से, फिर टेस्ट दे दो। आईएएस बनना की जो चाबी है ना वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी और हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस, ये एनसीईआरटी पे कमांड, जैसे आपको जीडीपी अगर पता है तो इकोनॉमिक्स के जितने भी न्यूज़ हैं जीडीपी से रिलेटेड वो आपको समझ में आएंगी। आप जब यहां से जाओगे कहीं भी तैयारी करने, इकरा जाओगे, वजीराम जाओगे, कहीं भी जाओगे, दिल्ली जाओगे, अहमदाबाद जाओगे, तो सबसे पहले चैलेंज आपके सामने पता है क्या पड़ेगा? न्यूज़पेपर। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, 4th पिलर। एक भाई साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएबी के खिलाफ, मैंने कहा सीएबी क्या है? बोले ऊबर वाले मुसलमानों को बैठा नहीं रहे। अरे मैंने कहा पागल हो यार, ऊबर वाले मुसलमानों को बैठा नहीं रहे, ये कौन बोला तुमको? हाँ नहीं, सब लोग कैब कैब कर रहे। अरे मैंने कहा ग्रेजुएट फ्रॉम कानपुर। सर मैसेज पड़ा है मेरे फोन में, जिस देश में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हो उस देश की हालत खराब हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। एनसीईआरटी इज द की ऑफ सिविल सर्विसेज। की सर आपको कोचिंग नहीं करना मत करिए, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते कोचिंग लेकिन सिलेक्शन लेते हैं। कोचिंग आपका सिर्फ एक काम करती है, जो काम आप 15 महीने में करेंगे वो 7 महीने में करा देगी। बस पढ़ना तो आप ही को है सर, सारी मेहनत आपको करनी, लड़ाई आपको लड़नी, सब कुछ आपको करना है। कोचिंग आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाए रखेगी एवरी डे। टीचर आएगा वो एक आध कहानी सुना देगा, आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर फाड़ डालेंगे। हाँ माँ बाप के पास इतना टाइम होता नहीं कि आपको डेली मोटिवेट करें। भाई जर्मनी में कोचिंग कल्चर नहीं है, स्वीडन में नहीं है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है, टीचर को पसीना आया था क्लास में जाते वक्त कि लड़के तैयार होकर बैठे होंगे, अभी भाई साहब ग्रिल करेंगे। टीचर शिवर करता है 30 लड़कों में एंटर करने में क्लास में। हमारे यहाँ वाजीराम में 1000 लड़के क्लास में बैठे, टीचर आराम से आता है, गुड मॉर्निंग सर। 2.5 घंटे की क्लास, कोई कुछ बोलता ही नहीं, ऐसे देखते। अच्छा तिलक ने यह भी कहा था सर, तिलक लगाते थे इसलिए उनको तिलक कहते थे। ऐसे क्वेश्चन पूछते ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स। और आगरकर साहब, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस पर्सनालिटी गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी क्यों कहा जाता है? बस यहीं पे क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर दूंगा। लोकहितवादी क्यों कहते हैं? जनता जो है, जनता के बारे में, स्त्रियों के बारे में, उनके अस्पृश्य है, उनके बारे में, उनके जो सवाल है, उनकी समस्या है, उनके इशू पर सोल्यूशन दिए थे शतपत्र नाम। चलो एक बार और दूंगा मैं तुम्हें बाद में। अच्छा लिखा कहा तुमने, वैसे कोई बात नहीं। ठीक है, आज मुझे बड़ा
अच्छा लगा। मैं एक बार सर को और मैडम को फिर से धन्यवाद दूंगा, आप सभी लोगों को थैंक यू बोलूँगा कि आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इकरा एक प्रोग्राम चला रही है, मैं तो अटैच हूँ और मैं शिफ्ट भी कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते जा रहे हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो क्लास तो दिल्ली में ही लेंगे लेकिन अब यहाँ भी रहेंगे। तो ये लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 15 महीने का, इकरा एनसीईआरटी पूरा 15 मंथ 3 फेजेस में प्रोग्राम है और 20,000 में तुम्हें दे ही चुका हूँ। तुम्हारा तो डिस्काउंट हो गया वो 20,000, तुम किसी को दे भी सकते हो, अगर कोई जा रहा है वहाँ तो तुम उसे दे भी सकते हो। आंसर सही था तुम्हारा, आंसर एकदम सही था। बाकी मैं अपनी एनजीओ की तरफ से कोशिश करूँगा कि एक सेमिनार आपके साथ और हो, मज़ा आएगा। मैं आपको टॉपिक्स दे दूंगा, हालांकि टॉपिक्स आपके पास पहले भी थे पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। अब कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, मैंने तो बड़े सारे क्वेश्चन पूछे, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और इजी इजी क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज। So my question is between for Lokmanya Tilak and Gopal Ganesh Agarkar. They were very good friends in their early life, but in 1888 they split their path because of their difference on the priority. So do you think that this split affected the freedom movement or the growth of the Congress? Because during 1890 to 1900 we don't see any major kind of event which happened in the Indian Congress. So do you think that this split affected the फिर वही बातें हो गई, फिर वही पर्सपेक्टिव वाली बात हो गई कि सूरत स्प्लिट हुई, कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन दोनों मैच्योर भी हुए। आफ्टर दैट यू विल नॉट सी स्प्लिट इन कांग्रेस। तुम जब 1922 में देखोगे कि जब गांधीइट्स एंड स्वराजिस्ट डिवाइड होते हैं तो इंटरनली अपने मुद्दे को सॉल्व करते हैं। तो ये डिवाइड, हालांकि और होता क्या है ना कि इंटेलेक्चुअल्स आर नेवर फ्रेंड्स। जैसे मैं यहां बैठूंगा और आपके कॉलेज के टीचर्स बैठेंगे और वो भी कुछ बोलेंगे, मैं भी, अच्छा, डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी। डिबेट मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटेलेक्चुअल्स आर नेवर फ्रेंड्स। अगर इंटेलेक्चुअल फ्रेंड हो जाए फिर तो समाज ही खत्म हो जाए। मैंने कोई बात कही, आपके सर ने तुरंत अपोज कहा, ऐसा नहीं, ठीक है। अपोजिशन से क्या होता है, डिस्कशन से क्या होता है कि हमें कई सारे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। मेजर इवेंट इसलिए नहीं हुआ कि स्प्लिट हो गई, क्योंकि आगरकर साहब वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जबकि तिलक साहब इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यू नो इट, ही वाज अ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो फॉर हिम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पॉलिटिकल पावर शुड कम इन द हैंड ऑफ कांग्रेस। अब दोनों का इंटरेस्ट अलग है। रिलेशन किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट पे। अगर आप एक 6 साल बच्चे के मोबाइल चेक करें, उसकी डीपी देखें, तो उसके डीपी में कौन होगा? मदर, पेरेंट्स होंगे 6 साल के बच्चे में, क्योंकि उसके दोनों की जरूरत है, माँ की भी बाप की भी। 16 साल के बच्चे के मोबाइल में जो डीपी होगी उसमें उसकी माँ होगी, क्योंकि वो सारा काम कराएगा अपने माँ के थ्रू कि पापा से कह दो 10,000 रुपये दे दो, गोवा जाना है। और 32 साल के आदमी के डीपी में उसकी वाइफ होगी, जिस पे एक नीचे कैप्शन होगा, माई लाइफ। तो इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? रिलेशन किस पे डिपेंड? इंटरेस्ट पे। दोनों में दुश्मनी नहीं हुई, इंटरेस्ट चेंज हो गया, ठीक है। उससे नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि 1890s तक मॉडरेट्स बहुत हावी थे, फायदा बहुत हुआ। फायदा इस सेंस में हुआ कि दोनों एक्टिवेट रहे, मासेस में लोगों के साथ काम करते रहे। रैंड को जो मारा पूना में, वो एक लेडी को बच्चा हो रहा था, वहां भी यही केस था, लेडी को बच्चा हो रहा था, पूना में प्लेग फैला हुआ था। तो रैंड वाज अ प्लेग कमिश्नर। तो ये जाता है उसके घर में, तो वहां के लोग बोलते हैं कि साहब 10 मिनट रुक जाओ, फिर हम
बाहर कर देंगे सबको, आप इंस्पेक्शन कर लेना। वो कहता नहीं, वो लेडी को घसीट के बाहर लाता, लेडी भी मर जाती, बच्चा भी मर जाता। तब तिलक आर्टिकल लिखते हैं मराठा में, फर्स्ट ऑफ द एडिटोरियल, फर्स्ट ऑफ फ्रंट पेज, तुम आज गूगल पे डालना उस पेपर को, न्यूज़पेपर को, मराठा ऑफ रिलेटेड टू रैंड मर्डर। तो उसका जो फ्रंट पेज है उसमें फर्स्ट हाफ में गीता का वो है मैसेज कि अगर कोई गलत काम करता है और तुम उसे मारते हो तो तुम मेरा काम करते हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और सेकंड हाफ में वो इंसिडेंट, और चापेकर ब्रदर्स ने दोनों पढ़ा। तो फिर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भैया एक काम भगवान का भी कर देते हैं, रैंड को मार दिया। तो मोबिलाइजेशन इन द सोसाइटी, दोनों अपने अपने, अगर तिलक सिर्फ एजुकेशन पे डिपेंड कर लेते तो कांग्रेस डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। तो फॉर अ टाइम बीइंग दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए, एनिमिटी पैदा नहीं हुई। और कोई सवाल? बैठा है आराम से, बैठो। सर बहुत बार हमने ये सुना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है और जो बेसिक इंडियन कल्चर था एजुकेशन का वो अब नहीं रहा है, या ऐसी बहुत बातें सुनते हैं। और जब से हमें फ्रीडम मिला है उस वक्त से भी आज तक बहुत लोगों ने ये कहा है, लेकिन फिर भी इतने साल होने के बाद भी या 70 साल होने के बाद भी हमारे एजुकेशन में जिन जिन बहुत अच्छे लोगों ने और जो सही था वो अप्लाई क्यों नहीं हुआ। और दूसरी बात, अब देखिए सर, ये जो कंसेप्ट है बहुत एक मिनट में इस पे बोल दूं। पहला क्वेश्चन हो गया ना कि अप्लाई क्यों नहीं हुआ। हमारा बच्चा डोमिनोज में जाने में बड़ा प्राइड फील करता है, क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्कूल इज अ फॉर्मेटिव फेज, और ये सारे प्राइवेट स्कूल्स दे गिव फंड टू द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा सप्लाई करते हैं। अब हमारे पास अंबेडकर जैसा पॉलिटिशियन नहीं है जो सैक्रिफाइस करेगा, पटेल जैसे पॉलिटिशियन नहीं है हमारे पास। जितने प्राइवेट स्कूल्स है ना, दे गिव सच अ बिग फंड। माई का जो कॉन्सेप्ट है, माई मेडिटेशन एंड योगा, शराब क्यों भी करी बाजार में? बिकॉज लाइफ इज अ स्ट्रेस। अब तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे होगे, एक चीज तुम्हारे जिंदगी में एंटर कर रही होगी, स्ट्रेस। पापा फोन करते होंगे कि बेटा मेरा बीपी बड़ा हाई रहता है और गुड़िया की शादी करनी, और थोड़ा जल्दी से कुछ करो। मिल रहा है स्ट्रेस। अब उस स्ट्रेस को कैसे निकालोगे? या तो ध्यान करो, योगा करो, भस्त्रिका करो। एवरी स्टूडेंट शुड डू भस्त्रिका फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। आप कोई नशा नहीं करेंगे। नशा करता ही आदमी इसीलिए क्योंकि उसको स्ट्रेस है। किसी को मजा आता है सिगरेट पीने में, उस पर फोटो बना रखी है, लंग्स बना रखा है, स्कॉर्पियन बना रखी है, दिखा रखा है कि कैंसर हो रहा है, फिर भी लोग पी रहे हैं, स्ट्रेस। तो वेस्ट को यह बात, कैपिटलिज्म को बहुत अच्छी तरह पता थी कि अब जिम चलाना है तो सलमान खान को शर्ट उतार के बॉडी वॉडी दिखाएंगे। क्या होता है ऐसे बॉडी से? एक हाथ मार दो बेहोश हो जाए। जो स्ट्रेंथ अंबेडकर में है इंटरनल, वो किसी जिम से नहीं आती। अ पर्सन वाज आस्क्ड टू सिट आउटसाइड द क्लास एवरी डे। अभी मैं आपको ह्यूमिलिएट कर दूं, आप दोबारा मुझसे नहीं मिलेंगे। ही वॉज ह्यूमिलेटेड एवरी डे। यू कैन इमेजिन द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। लंदन की लाइब्रेरी में बैठते थे, एक पैटीज जेब में रख के बैठते थे, खाने का पैसा नहीं होता था, फिर लंच के टाइम में ऐसे सर रख के उस पैटीज को खाते थे, पानी पीते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने पकड़ लिया, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन को बताया कि सर मेरे पास पैसा नहीं होता कि मैं खाना खा लूं। पहले नहीं बताया, पहले जाके नहीं रो रहा कि साहब मैं गरीब घर से आ रहा हूं, मेरी फीस में ऐसा कुछ नहीं। सीधा इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन कि हम गरीब थोड़ी है। मैं अभी यहाँ धर्माधिकारी ट्रस्ट है पुणे में, वहाँ क्लास लेने गया था, तो बच्चे बेचारे सब ज़मीन पे बैठे थे। मुझे पहली बार मैंने देखा यूपीएससी प्रिपरेशन के लड़के ज़मीन पे बैठे, तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा यार, तो उन लोगों ने कहा कि सर हमारे सब गरीब घर के बच्चे। मैंने कहा दोबारा मत कहना। तो बाई चांस वहाँ पे एक फ़ोटो लगी थी शिवाजी और गुरु रामदास की। तो मैंने उन लड़कों से पूछा इसमें अमीर कौन है? तो बोले गुरु रामदास। मैंने कहा ये तो कपड़ा ही नहीं पहने। हमें उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई गई। हमें बताया गया कि मर्सिडीज मीन्स वेल्थ। नो, गांधी के पास कौन सी मर्सिडीज है?
पुरुषोत्तम दास ठाकुर, चेयरमैन ऑफ FICCI, 1927 comes to meet him in Sabarmati ashram. He was forced to sit for 4 hours. 4 घंटा बाहर बिठा रखे, बोले चरखा चला रहे. इसको बोलते हैं वेल्थ. तो होता क्या है ना कि जब प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है. तो प्राइवेट स्कूल्स आने शुरू हुए और खासकर हमने जैसे रेयान इंटरनेशनल है तो वो बाहर का वो लॉबी है, तो अब वो क्या करेंगे, वो तो अपना ही कल्चर प्रमोट करेंगे ना. भाई मेरी बेटी को क्लास टीचर ने कहा कि तुम ये हमारा यूपी में एक डिश होती है लोकल, जैसे आप यहाँ भाकरी वगैरह खाते हैं तो वहाँ पे बाटी चोखा होता है, तो स्कूल लेके गई बाटी चोखा, तो टीचर ने कहा कि अरे यू बीइंग ट्रेडिशनल फूड इन द क्लास. तो मैंने टीचर को जाके बोला, मैंने कहा मैडम प्लीज, यही खा के बहुत लोगों को मारा हम लोगों ने. ड्रेस आपको लगता है आप जीन्स पहन लेंगे तो आप स्मार्ट लगेंगे, आप मॉडर्न लगेंगे, आप मॉडर्न लगेंगे अपनी थॉट प्रोसेस से. हमारे कंट्री में क्या है कि हम ड्रेस देखते हैं, फूड स्टाइल, चाउमीन खा रहे हैं. फूड डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी. आपका जो फूड है, मैं तो यहाँ आता हूँ पुणे महाराष्ट्र, तो मुझे एक दिक्कत होती है, यहाँ के लोग यार वो चिलीज बहुत खाते हैं. वो हमारे एक दोस्त हैं, वो रेड चिलीज तो खाने में ही रख लेते हैं, कहते हैं टेस्ट होता है. अरे मैंने खा ले तू टेस्ट. और गुजराती को अगर इतना सारा चिली डाल दोगे वो तो भाग जाएगा, वो तो दाल में चीनी डालता है. अ ड्रेस ऑफ अ पर्सन एंड अ फूड ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी. तो उसके पीछे वजह यह रही कि आपने पार्टिसिपेशन लेना बंद कर दिया, आपने राजनीति से, आप तो दूर चले गए राजनीति से. अगर फर्गूसन कॉलेज का प्राइम मिनिस्टर हो कंट्री का, तो वो तो जानेगा ना आगारकर को और अम्बेडकर को, तो उस तरह की पॉलिसी बनाएगा. आप तो प्राइम मिनिस्टर किसी को भी ले आते, तो भाई दिक्कत तो होगी. अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस आप जाइए ना, आप सिलेक्शन लीजिए, IAS की तैयारी करिए, आप बनिए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए, आइडेंटिटी क्रिएट करिए कंट्री में, इलेक्शन लड़िए. पार्लियामेंट में भी अच्छे ही लोग जाएंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चला कौन रही है, पार्लियामेंट. लेकिन गवर्नमेंट हमेशा अच्छी होती है क्योंकि गवर्नमेंट जनता से चुनकर आती है, इसलिए गवर्नमेंट पे कभी कोई कमेंट नहीं हो सकता. फिनिश. और कोई बात? नो वन. चलो अच्छा है. हाँ, नहीं जैसे आप फर्गूसन में आते हैं तो आपको जेम्स फर्गूसन के बारे में जानना है. मैं भूल गया तो उस वक्त मेंशन करना, दैट मैन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन क्रीमियन वॉर. आज जाके पढ़ना क्रीमियन वॉर. उस आदमी ने क्रीमियन वॉर में इतना बड़ा रोल रहा उस आदमी को, उसने अपनी जान लगा दी. द एंटायर विक्ट्री ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस इन द क्रीमियन वॉर इज बिकॉज ऑफ दिस मैन जेम्स फर्गूसन. और रेजिमेंट कौन थी? ग्रेनेडियर. कहां के थे? स्कॉटलैंड. तो अब तुम इतने बड़े कैंपस में आते हो, तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं कि फर्गूसन साहब कौन थे? कॉलेज हिंदुस्तान का खड़ा किया डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ने. आप सामने का बोर्ड देखो, उस पर नीचे लिखा है इस्टेब्लिश्ड बाय डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1885. तो जब हमने खड़ा किया तो दूसरे का नाम क्यों दे रहे? तो कोई रीजन होगा. तो फिर कौन है ये आदमी? ये है क्यूरियोसिटी. जी बैठ जाओ यार, खड़े होकर कुछ मत पूछो. जब से हमें फ्रीडम मिला है तब से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस देश में हुए हैं, और जो कुछ भी हुए हैं, एक बात ऐसी होती है कि कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं और कुछ लोग इंस्पायर करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में जो कुछ भी आज लीडर्स है उसमें ज्यादा मैनिपुलेट करने वाले हैं या इंस्पायर करने वाले? देखो, प्रियम्बल कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व. ठीक, तो इस देश का असली राजा कौन? मैंने तुमसे कहा अपनी आंखें फोड़ लो, IAS बन जाओगे, और तुम फोड़ लेते हो.
जब राजा ही बेवकूफ है। तुम सोच के देखो यार इन बातों को। Why to blame politicians? हम उनकी गलती क्यों दें? मैंने आपसे कहा दोनों आगे पढ़ लो भैया, IAS बन जाओगे और यहां से भी दिखाई पड़ने लगेगा बाद में। बड़ा सा कर लीजिए कोई बात। पैसा कमाना। अरे सिंपल सी बात है यार। अब मैं तुम्हें एक आइडियल जवाब दे दूं कि हम एक सेवा करने, कोई सेवा वो नहीं करता दुनिया में। ये तो बात ही गलत हो गई। लेकिन कुछ लोग पैसे लेके भी सेवा नहीं करते, बात वहां गलत है। पैसा लिया ठीक किया। बहुत सारे लड़के, मैं यहाँ कई सारे लड़कों से मिला जिन्होंने कोचिंगें कर रखी हैं, कहा कि साहब हम तो कुछ हम समझ ही नहीं पाए। हमने कहा तुम्हें किसी ने मारा नहीं। इकरा में आप मार भी खाएंगे। इकरा की एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी ये है कि अगर आप जब तक NCERT के विंग में हैं और आप काम नहीं करते, यू विल बी बीटन। आप मारे जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है, हमारी आदत है प्रेशर में वर्क करने की। हमारी समाज में भाई बचपन से माँ बाप का प्रेशर, फिर जब हम कॉलेज में आए तो प्रेशर खत्म हो गया। और 10 घंटा एवरीडे का शेड्यूल होना चाहिए। तो वहां एक नई फैसिलिटी ये है कि आपको मार पड़ेगी अगर आप काम नहीं करेंगे। अगर आप मार से बचना चाहते हैं, पैसे दे दीजिए। जैसे आपने होमवर्क नहीं किया तो जितनी बार आपने होमवर्क नहीं किया 1000 रुपये दे दीजिए, किसी को तो फायदा हो। भाई आपको नहीं हो रहा, हमें तो हो। तो 10 लोग क्लास में होमवर्क करके नहीं लाए, 10,000 रुपये मिल गया। हम आराम से कॉन्ट्रैक्ट में बैठ कर डिनर कर रहे हैं आराम से, आप रो रहे हैं, तो उस रोने की वजह से आप दोबारा पढ़ के आएंगे। बस यही है जी। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने एक अपने लेक्चर में एक बार मतलब ये अलग सब्जेक्ट है लेकिन पूछता हूँ कि कार्ल मार्क्स को कुछ लोगों ने पूछा था कि हम पुअर क्यों हैं, तो वो जो एक इंसिडेंट है वो क्या आप बताएंगे? नहीं, उन्हें लोगों ने पूछा कि हम पुअर क्यों हैं, तो उसने कहा आपके पास पावर नहीं, नाइदर इकोनॉमिक नॉट पॉलिटिकल। वही तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो डायग्राम मैंने बनाया, उस डायग्राम में, उस लेक्चर में, यू सी दैट डायग्राम, मैंने डायग्राम बनाया है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर किसके पास? फ्यूडल लॉर्ड्स। मॉडर्न वर्ल्ड में किसके पास? मुकेश अंबानी के पास। आज दुनिया का राजा कौन है? कैपिटलिस्ट। अंबानी साहब, इस देश के असली राजा अंबानी साहब हैं। उनका खुद का मकान 8,000 करोड़ रुपए का, उनकी बेटी की शादी, उसको उन्होंने एक मकान गिफ्ट किया 1,000 करोड़ का, हाजी अली के सामने। उनकी वाइफ को बर्थडे था, उन्होंने 500 करोड़ का गिफ्ट दिया अपनी वाइफ को। जो आदमी 2-2 हज़ार करोड़ का गिफ्ट दे रहा है, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ चला जाए, कितने मेंबर हैं पार्लियामेंट में? 545। कल वो बुला लेंगे सबको, क्या हो चाय की पार्टी दे दे और रख देंगे 5,000 करोड़ रुपए सामने। और पॉलिटिशियंस हमारे ज्यादातर धोती पहनते हैं, ज्यादा पैसा आता है उसमें खोल के रख लिया, पैसा लेके चले। परसों नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा सर। ये मार्क्स ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, ना इकोनॉमिक पावर है ना पॉलिटिकल, और जिसके पास पावर नहीं है वो एक्सप्लॉइट होगा। आपने किसी को देखा रिक्शा वाले को गुड मॉर्निंग करते हुए? कोई नहीं करता। अभी अमित शाह जी कहते हैं हम सब जाके दो सर। पावर, जो हमें पहली चीज सिखाई जानी चाहिए वो ये है कि द फर्स्ट थिंग इज पावर, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। एक मिनट, मैं तुम्हें अपना वो दे दूंगा, ईमेल आईडी, तुम सारा क्वेश्चन उस पर डाल देना। ओके, तो मैं फिर से आप सब लोग को थैंक यू कह रहा हूँ। मैनेजमेंट, it is really very difficult to summarize such a